السلام علیکم ناظرین، 4 کشمیر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ وزیر داخلہ امت شاہ کا آج سے 3 روزہ دورہ جموں کشمیر وادی میں کیے گئے ہیں 3 ٹائر سیکورٹی انتظامات۔ جموں کشمیر میں بڑھتی دہشت گردی پر امت شاہ جواب دیں، کانگریسی قائد رویندر شرما نے وزیر داخلہ پر دیا زور۔ تحفظات کے معاملے پر جموں کشمیر سرکار سنجیدہ ہے، 6 ماہ میں کمیٹی رپورٹ پیش کرے گی۔ کابینی وزیر سکینہ یتو نے دیا تیقن۔ جموں میں پاک رینجرز و بی ایس ایف کے دوران ہوئی فلیگ میٹنگ۔ گزشتہ روز پیش آئے دراندازی کے واقعے پر بھارتی فورسز نے درج کیا احتجاج۔ عوام سائبر جعلسازیوں سے ہوشیار رہیں، ایس ایس پی سری نگر کی پریس کانفرنس۔ کہا پولیس نے 7200 جعلی اکاؤنٹس کے خلاف کی کارروائی، 21 افراد کیے گئے گرفتار۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج اپنے 3 روزہ دورہ جموں کشمیر کے تحت جموں پہنچے۔ پیر 7 اپریل کو وہ سری نگر پہنچیں گے۔ امت شاہ اپنے 3 روزہ دورے کے دوران جموں کشمیر میں سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ جموں کشمیر میں فوج، بی ایس ایف، سی آر پی ایف، پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کے اعلیٰ عہدیداروں سے امت شاہ کی ملاقات ہوگی۔ وزیر داخلہ اپنے خصوصی دورے جموں کشمیر کے دوران سرحدی علاقوں کا بھی دورہ کریں گے اور سرحدات پر کیے جانے والے سلامتی امور کا معائنہ کریں گے۔ شیڈول کے مطابق آج دوپہر امت شاہ جموں میں بی جے پی کے اراکین اسمبلی اور دیگر لیڈران کے اجلاس کی سربراہی انجام دی۔ اس اجلاس میں جموں کشمیر بجٹ اجلاس کے بشمول بھاجپا کے جموں کشمیر میں سیاسی سرگرمیوں پر امت شاہ مقامی لیڈران سے تبادلہ خیال کیا۔ امت شاہ بروز پیر 7 اپریل کو سری نگر پہنچیں گے۔ امت شاہ اپنے دورے کے دوران ایل جی جموں کشمیر سے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں ملاقات کریں گے۔ اس اجلاس میں انسداد عسکریت پسندی مہم، جموں کشمیر کے اندرونی حالات اور سرحدی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ سے بھی امت شاہ کی علیحدہ ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات میں جموں کشمیر کی تعمیر ترقی سے متعلق مختلف منصوبہ جات پر دونوں قائدین بات چیت کریں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ 8 اپریل کو دہلی واپس ہوں گے۔ امت شاہ کے دورے جموں کشمیر کے پیش نظر سری نگر جموں کے بشمول تمام حساس سمجھے جانے والے علاقوں میں غیر معمولی سیکورٹی بندوبست کیے گئے ہیں۔ سری نگر میں 3 ٹائر سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سری نگر کے بشمول وادی کشمیر کے دیگر اضلاع اور جموں کے سرحدی علاقوں میں فورسز کو الرٹ رکھا گیا ہے۔ شہری علاقوں میں خصوصی ناکے لگائے گئے ہیں۔ سڑکوں پر گاڑیوں اور راہگیروں کی جامع تلاشیاں لی جا رہی ہیں۔ سیکورٹی بنیادوں پر حساس سمجھے جانے والے عوامی مقامات پر ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پولیس، فوج، سی آر پی ایف، بی ایس ایف خفیہ ایجنسیوں کے اشتراک سے مشترکہ سیکورٹی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے جموں کشمیر کے پیش نظر عوامی مقامات، سرحدی علاقوں اور اہم سرکاری عمارتوں کے قریب ایک نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ کانگریسی قائد رویندر شرما نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ امت شاہ کو چاہیے کہ وہ جموں کشمیر میں بڑھتی دہشت گردی سے متعلق جواب دیں۔ وزیر داخلہ کے 3 روزہ دورے جموں کشمیر کے تناظر میں کانگریس کے سینئر لیڈر رویندر شرما نے وزیر داخلہ کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خلاصہ کرے کہ آخر وہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کو کنٹرول کرنے میں کیوں ناکام رہے۔ رویندر شرما نے بالخصوص جموں میں عسکری حملوں میں ہونے والے اضافے پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں امن و امان، تعمیر و ترقی سے متعلق مودی حکومت کے دعوے کھوکھلے ہیں۔ مودی سرکار
मुल्क भर में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों से हसास इंतहाई से दो चार कर रही है। बीजेपी का फ़िरक़ावाराना रवैया मुल्क की कौमी यकजहती के ख़तरनाक साबित हो रहा है। वज़ीर आला तालीम व समाजी बहबूद सकीना यत्तू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की एनसी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में संजीदा है। हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी 6 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। श्रीनगर के SKICC में मुनक़िदा आला सतही इजलास में शिरकत के बाद सकीना यत्तू ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि काबीना की ज़ैली कमेटी तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में वो संजीदा हैं। इन्होंने कहा है कि अदालत में पेश करदा हलफनामे को गलत अंदाज में पेश किया गया। आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से कई एक वफ़ूद ने मुलाकात की और तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ अपनी तजावीज़ पेश की। वज़ीर आला ने बाज़ाब्ता तौर पर एक पैनल तश्कील दिया है और ये पैनल 6 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इन्होंने कहा है कि जो आज हुकूमत पर तनक़ीद कर रहे हैं उन्हें 6 माह बाद हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा होगा। जल्दी करो मैम, गाइड रखिए। बस बस बस, शुक्रिया शुक्रिया। आराम से मैम पहले ये बताएं कि आज जो मीटिंग हुई थी तो किस तरह से ये मीटिंग, थोड़ा सा क्या ब्रीफ करें इस मीटिंग के बारे में। आज सब कमेटी की कई मीटिंग्स पहले हुई हैं। जो सब कमेटी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने रिगार्डिंग रिजर्वेशन बनाई है, उस सब कमेटी में ऑनरेबल जावेद साहब हैं मिनिस्टर जो मेरे साथी हैं, सतीश जी हैं जो मेरे दूसरे साथी हैं ऑनरेबल मिनिस्टर। हम 3 हैं सब कमेटी में और सब कमेटी ने पहला भी जो है कई बार मीटिंग्स हुई हैं। सब कमेटी अपना काम जो है रिजर्वेशन के ऊपर कर रहे हैं। आज यहाँ एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कुछ डेपुटेशन आए, उनसे मिले, उनकी बात सुनी, उनके प्रेजेंटेशन जो है वो ली है, उनको एग्जामिन किया जा रहा है। सब कमेटी इंशाल्लाह अपना रिपोर्ट जो है विदिन 6 मंथ जो है वो सबमिट करेगी। मैम जो एफिडेविट सबमिट कराया गया था हाई कोर्ट में, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है। आखिरकार सरकार उस एफिडेविट में कहना क्या चाहती थी? सरकार कमिटेड है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने सब कमेटी बनाई, 6 महीने में रिपोर्ट आएगी। और जो ये चीज़ें कर रहे हैं, जहाँ जो किसी चीज़ के बारे में सरकार को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, सरकार को वो लोग खुद सिंसियर नहीं हैं, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया है, लेकिन सरकार करना चाहती है। इंशाल्लाह सरकार इस पे काम कर रही है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर कहीं पे भी सरकार को एफिडेविट देना पड़ेगा रिगार्डिंग रिजर्वेशन कि कहीं पे जो है सरकार इसको देख रही है, सरकार ये सबमिट करेगी विदिन 6 मंथ्स जो है अपना रिपोर्ट देगी। जो आज मुखालिफ इसको उबारना चाहते हैं, इसका पॉलिटिकल फ़ायदा लेना चाहते हैं, 6 महीने के बाद वो खुद उनको पता चल जाएगी कि सरकार सिंसियर थी या नहीं। शुक्रिया। अपोजिशन कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाथ खड़े किए हैं रिजर्वेशन को लेकर, जो एफिडेविट उन्होंने भरा है, क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही। चले शुक्रिया। एफिडेविट का उनको बहाना है। एफिडेविट जिसने भी जमा किया है वहाँ पे कोर्ट में वो लोकसभा और राज्यसभा में मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद सदर जमहूरिया ने भी मंजूरा बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। इस तरह वक्फ तरमीमी बिल अपने तमाम मराहिल की तकमील के बाद अब कानून बन चुका है। वाज़ेह है लोकसभा में 232 के बिलमुकाबिल 288 और राज्यसभा में 95 के बिलमुकाबिल 128 वोटों से वक्फ तरमीमी बिल को मंजूर किया गया था। वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी को अपोजिशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मुस्लिम तंजीमों ने वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी की सख्त मुखालिफत करते हुए पुरअमन मुल्क गिर एहतजाज जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया है। जम्मू कश्मीर के मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने 9 अप्रैल को श्रीनगर में हंगामी इजलास तलब किया। इजलास का इनेकाद मीरवाइस मंजिल नगीन में अमल में लाया जाएगा। इजलास में मुत्तहिदा मजलिस उलमा के अरकान शिरकत करेंगे। वक्फ तरमीमी बिल की पार्लियामेंट में मंजूरी के मामले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जम्मू में हिंदुस्तानी BSF और पाकिस्तानी BSF के आला ओहदेदारों की फ्लैग मीटिंग मुनक्किद हुई। भारतीय फोर्सेस ने
गुज़िश्ता रोज़ जम्मू में होने वाली दरअंदाजी के मामले पर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। रेंजर्स को इस बात के लिए जोर दिया गया कि वो जंगबंदी की पासदारी के दौरान सरहद पार से होने वाली दरअंदाजी की रोकथाम करे। वाज़ेह रहे, गुज़िश्ता रोज़ जम्मू में सरहद पार से होने वाली दरअंदाजी के खिलाफ भारतीय फोर्सेस की फायरिंग में एक दरअंदाज जाँ बहक हो गया था। एसएसपी श्रीनगर इम्तियाज़ हुसैन ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए आवाम को मशवरा दिया है कि वो साइबर जालसाजियों से होशियार रहें। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा है कि 7,200 ऑनलाइन जाली बैंक अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पिछले चंद दिनों के दौरान 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कश्मीर में रिसेंटली बहुत बड़ा एक नेटवर्क जो साइबर फ्रॉड्स का है उसको अनर्थ किया है। व्हाट वी हैव सीन के large scale of mule accounts. I just want to inform you कि mule account क्या होता है। mule account क्या होता है, कोई भी साइबर फ्रॉडिस्टर किसी को भी बोलता है कि आप एक अकाउंट खोलिए बैंक में, और वो अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन एक्टिव रहता है, और उन्हीं 1-2 दिन में जो भी विक्टिम होता है साइबर फ्रॉड्स का, उसका पैसा उस अकाउंट में जाता है, एंड विद इन नो टाइम, विद अ वेरी स्मॉल विंडो, ये पैसा फिर अल्टीमेटली फ्रॉडस्टर्स के पास पहुंचता है। जो हमने पिछले कुछ दिनों से देखा, हमारी जो तफ्तीश अभी तक रही है, उसमें वी हैव सीन कि ऑल ओवर कश्मीर सिर्फ इस साल सिंस 1 जनवरी 2025 7,200 सच म्यूल अकाउंट्स हैव बीन क्रिएटेड। दिस इज सो फार जो हमारी नॉलेज में अभी तक आया, देयर कैन बी मोर। तो ये जो म्यूल अकाउंट्स हैं, ये प्राइमरी अकाउंट्स है। किसी भी विक्टिम का जब पैसा फ्रॉड होता है, चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू हो, चाहे वो फिशिंग एक्टिविटीज के थ्रू हो, चाहे आइडेंटिटी थेफ्ट की वजह से हो, या किसी और भी साइबर फ्रॉड की वजह से हो, तो इसमें ये पैसे आ जाते हैं। व्हाट वी हैव सीन कि ये जो लोग हैं जो ये म्यूल अकाउंट्स खोलते हैं, उनको कोई अप्रोच करता है, उनको एक कमीशन बेसिस पे बोलते हैं 1 या 2 दिन के लिए आप अपना अकाउंट खोलिए, उसके बाद ये पैसा जब हमारे पास आएगा आपको थोड़ा कमीशन दे देंगे। ये एक बहुत ही बड़ा अपराध है, एक क्राइम है। इसमें हमने 4 FIRs अभी तक लॉन्च किए हैं। सो फार वी हैव अरेस्टेड 21 पीपल जिनको हमने वी हैव सेंड इनटू जेल्स। उसमें 19 आर फ्रॉम श्रीनगर ओनली। वी हैव आल्सो सीन कि दैट श्रीनगर सिटी एंड सम अदर एरियाज ऑफ कश्मीर वैली इवन इन जम्मू हैव बिकम मेजर सेंटर्स एंड हॉट स्पॉट्स फॉर साइबर फ्रॉड्स। श्रीनगर में खासकर जो एरियाज जहाँ पे ऐसे म्यूल अकाउंट्स खोले गए हैं, इसमें है मैजूर नगर, नटीपोरा, नौगांव, लसजन, पातशाही बाग, नौहटा, खानियार, रैनावारी, सोहरा, पटमालू, नूरबाग, कमरवारी, पारिमपुरा, मुजगुड़, बेमना। इसी तरह बाकी डिस्ट्रिक्टों में खासकर हम कंगन एरिया जो गांधरबल का है, सुंबल, बांडीपुर, बारामूला, पुलवामा, नकला, कुलगाम और शुपयान में ऐसे म्यूल अकाउंट्स खोले गए हैं। मैं यहाँ पे सबको ये कॉशन देना चाहता हूँ कि जिसने भी ये म्यूल अकाउंट खोला है और जिसके भी अकाउंट में साइबर फ्रॉड का पैसा आया है, इट शैल हैव लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, स्ट्रिक्ट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। सब लोगों को हम नायब सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर मोहम्मद अनवर भट्ट ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। प्रदेश कांग्रेस में मीडिया की जानिब से गश्त करने वाले बाज़ तबसरों को मोहम्मद अनवर भट्ट ने बेबुनियाद करार दिया। MLA बांडीपुरा के बयान से मुताल्लिक़ मीडिया में जारी तबसरे पर मोहम्मद अनवर भट्ट ने कहा है कि उनको कांग्रेस में पनाह मिली, लेकिन वो हमेशा जल्दबाजी से काम लेते रहे हैं। अभी मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि हमारे एक ऑनरेबल MLA बांडीपोरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है। मेरे सियासत में 40 साल हो गए, और खुदा की मेहरबानी से जब मैं सियासत में आ गया, कांग्रेस में आ गया मैं, और आज तक मैं इसी पार्टी में बस्ती सिपाही काम करते आया। ग्राउंड जीरो से लेकर स्टेट ऑफिस बेरर बनने तक, चाहे वो यूथ कांग्रेस है, चाहे वो पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सब ओहदों पर, ब्लॉक से लेकर स्टेट तक मैंने सब ओहदों पर, चाहे वो ब्लॉक प्रेसिडेंट ही थी, चाहे वो यूथ कांग्रेस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्टेट, चाहे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे जनरल सेक्रेटरी PCC, चाहे
वाइस प्रेसिडेंट, चाहे इस वक्त में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे ऑनरेबल AICC प्रेसिडेंट मलिक अर्जुन खड़गे ने मुझे अपॉइंट किया है। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने देखी है ऑनरेबल MLA निजामुद्दीन भट्ट, मैं हैरान हो गया। हमारी पार्टी में उसको जो पनाह मिली है वो बेसिकली सियासत में जब से वो आए थे, जो मैंने सुना और जब मैंने पढ़ा उनके बारे में, वो दल बदलू का आदी रहा है। सियासत में दल बदली तो ठीक है, लेकिन कभी पाकिस्तान, कभी कलिमा, तो कभी राम राम, ये उसमें सारी क्वालिटियां मैंने पाई है। वो मरहूम गनी लोन साहब का सेकंड इन कमांड रहा है, वो डबल करेंसी वाला कहने वाला वही है, सेल्फ रोल की बातें करने वाला वही है। जुमा 8 दिन हो गए उसको हमारी कांग्रेस में। मुझे हैरानी हुई है उस वक्त जब उसने सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडरों की मुखालिफत की है। अभी ही इज येट स्टूडेंट इन आवर पार्टी, हैज नो मेंबरशिप इन माय पार्टी। उसको क्या पता है कांग्रेस क्या है, कांग्रेस कल्चर क्या है। और हैरानी की बात है, जब मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसने कहा मैं कर्रा साहब का हूं, वो नहीं है इंडियन नेशनल कांग्रेस का या जम्मू कश्मीर कांग्रेस का, मैं कर्रा साहब के साथ आया हूं डावरी में। अरे भाई शर्म करो, तुझे पता है किस पार्टी में है? ये वो पार्टी है जो महात्मा गांधी की पार्टी है। जेडीयू लीडर GM शाहीन ने आज सुपुर के चंकीपुरा में पार्टी के एक इजलास की सरबराही अंजाम दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे जम्मू कश्मीर के मौके पर उनसे मुलाकात करते हुए ऐसे मुकदमात को ख़त्म करने की दरख्वास्त करेंगे जिसमें एक अरसे दराज से नौजवान फंसे हुए हैं और वो बेकसूर भी हैं। पार्टी ऑर्गेनाइज़र भी है एजाज मकबूल साहब जिन्होंने ये रखा था, और इनकी मोहब्बत और बहुत अच्छा सोपोर के अंदर जो लोगों का वलवला देखा, इनकी मोहब्बत देखी, सही माने में मैं इनको मानता हूं कि आने वाले दिनों में मेहनत करेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे। इनने ये भी कहा कि इनके लोगों लिस्ट बनाए ये लोग, क्योंकि गृह मंत्री आ रहे हैं 2 दिन के दौरे पे कश्मीर भी, तो इंशाल्लाह मैं कल परसों ही उनको वो लिस्ट देके, जिस तरह 800 समथिंग FIR हमने रिवो करवाई, तो यहाँ पे कितने केसेस 2019 के पहले हैं तो हम रिवो करने की कोशिश करेंगे। बता दिया मैंने, पूरा वजाहत कर दी। अभी आपने देखा कि मैंने कहा कि जूट की फैक्ट्री ने जो 42 कॉलम्स उन्हें पढ़े, अभी विदाउट सोचे समझे किसी चीज़ के ऊपर गलत बयानी देना बहुत गलत है। अगर ऐसा होता तो अजमेर शरीफ के मौलाना साहब, दिल्ली के शाही इमाम और निज़ामुद्दीन की जो कमेटी है, हाजी अली की जो मेंबर्स है, वो फिर सब वो सपोर्ट, और जनता दल यूनाइटेड तो बिल्कुल ही नहीं करता, बिकॉज मेरे तो यहाँ 19% मुसलमान है बिहार के अंदर, हम तो सपोर्ट करने का मतलब ही नहीं बनता था। जब हमने देखा कि सब चीज़ें हमारी 8 पॉइंट्स थी जहाँ पर हमें कुछ डाउट्स थे, और वो 2 तारीख को उन्होंने मंजूर कर दिए, तब जाकर हमने सपोर्ट किया। कहा है अभी ऐसी बात करेगा तो FIR लगेगा तो जेल जाएगा। बेटे के ऊपर तलवार गिरी चुकी है पहले, हवाला मनी की, तो दूसरे का न सोचे जो हुई, तो बोला हमें नहीं पता, और बिल्कुल उसके रिस्पॉन्सिबल है। मैं पहले भी अपने प्रोग्राम से बता चुका हूँ, अगर ये लोग उस वक्त उसका तहकीकात सही तरीके से करते, जुडिशरी को अपना काम करने देते, शायद लोगों की नाराज़गी नहीं होती। कि यूथ्स को कि जहाँ तक मैंने आज यहाँ कदम रखा कि कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। हमने 3 महीने का वक्त मांगा है, तो 3 महीने के बाद एक नई बहार ज़रूरी है। उनके दिल मजरूह हो चुके हैं, और लेकिन हमें एक दफ़ा वो मौका देकर देख सकते हैं। श्रीनगर में बीजेपी के सदर दफ्तर पर आज पार्टी का 45वां यौम तासीस मनाया गया। यौम तासीस के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में अल्ताफ़ ठाकुर, दरख्शां इंद्राबी और दीगर लीडरान ने शिरकत की। पार्टी के बानी लीडरान को खिराज पेश किया गया।
in 1980. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब गुजरात मराठा. Feeling proud of being this in this party and its ideology, and it is being proved by the activities, and people also accepting it. That is what I want to say. See, that Muslims, Muslims were distributing sweets because they got the freedom. Actually, they got now the freedom because the property is there now. These all properties are there, and they can enjoy. They can build the schools, colleges, hospitals, anything for poor people. It can be useful. And they can go to the mosque and they can pray, which is located in Waqf property. Previously, they were prevented because they are poor. It always no, that let them. They have the freedom. Let it be. But one should no. We have done the right thing. What is the problem? देखिए, आज फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है. हम यहाँ श्रीनगर यूनिट आज अपना फाउंडेशन डे, हमारी पार्टी का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं लोगों के साथ, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, हमारे कार्यकर्ता के साथ. तो हमारे लिए खुशी का दिन है जिस दिन ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई जिसने पर्टिकुलरली कश्मीर के लिए बहुत काम किया. कश्मीर में अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई बीचेस के लिए, बॉलीवुड के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए जाना जाता था. दिल्ली हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए, एजुकेशन हब्स के लिए, पार्क्स के लिए जाना जाता था. और कश्मीर, जब कश्मीर की बात करते थे तो कॉन्फ्लिक्ट, गन फाइट्स, बैटल्स, ऐसी चीज़ें आती थी. अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जब कश्मीर में आई और कश्मीर में फ्लरिश करना स्टार्ट की, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया कि कश्मीर को एक पीसफुल स्टेट बनाया, टूरिज्म हब बनाया, इन्वेस्टमेंट हब बनाया. तो हम उसी पार्टी को और उसी ऑर्गेनाइजेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज. पुंछ में नोनान बंडी ता नदी धान के दरमियान सड़क इंतहाई मखदूश हो चुकी है. मुकामी लोगों ने आज एहतजाज करते हुए हुक्काम से मुतालबा किया है कि सड़क की तामीर की जाए. मुकामी लोगों ने कहा है कि उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है. पिछले 4 बरसों से वो हुक्काम से मुतालबा कर रहे हैं कि सड़क की तामीर की जाए, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी, मेरा नाम मनीर हुसैन है और मैं गांव नूना बांडी मल्ला डन्ना वार्ड नंबर 8 से बिलोंग करता हूं. आज जितने भी मेरे साथ ये नौजवान यंग खड़े हुए हैं, आज हमारा ये मसला है, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं कि हमारी ये, मैं कैमरामैन को कहूँगा ये रोड की सर थोड़ा कैमरा घुमाएं. ये जो हमारी रोड है गांव नूना बांडी बाया नाड़ी टू डन्ना, 4 साल हो गए ये रोड सैंक्शन हुई है. इसका प्रोजेक्ट सैंक्शन है, इसका 4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है. तो एक ठेकेदार है मोहम्मद यूसुफ डिंगले वाले, हमारी उनसे भी गुजारिश है कि आप हमारे साथ क्यों ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं. हमारी डिपार्टमेंट से गुजारिश है, एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से डीसी साहब से गुजारिश है, मौजूदा सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारी इस रोड का मुताला करें, देखें, डिपार्टमेंट मौके पे आए, देखें क्या रोड की कंडीशन देखें, आवाम की परेशानी का अजाला करें और ये रोड को कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या इतना लंबा पीरियड क्यों इन्होंने ले रखा हुआ. आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर. वज़ीर दाखिला अमित शाह का आज से 3 रोज़ा दौरा. जम्मू कश्मीर वादी में किए गए हैं 3 टायर सिक्योरिटी इंतजाम. जम्मू कश्मीर में बढ़ती दहशतगर्दी पर अमित शाह जवाब दें. कांग्रेस कायद रविंद्र शर्मा ने वज़ीर दाखिला पर दिया जोर. तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर जम्मू कश्मीर सरकार संजीदा, 6 माह में कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी. काबीनी वज़ीर सकीना यत्तू ने दिया तयक़्क़ुद.
जम्मू में पाक रेंजर्स व BSF के दौरान हुई फ्लैग मीटिंग। गुज़िश्ता रोज़ पेश आए दरअंदाजी के वाक़े पर भारतीय फोर्सेस ने दर्ज किया एहतजाज। अवाम साइबर जालसाजियों से होशियार रहें। SSP श्रीनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पुलिस ने 7,200 जाली अकाउंट्स के खिलाफ की कार्रवाई। 21 अफराद किए गए गिरफ्तार। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।